بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملا رہے. اہل حدیث تھے انشاءاللہ اس لائن پر آگے اپنی نسل کو بھی اس لائن پر چلا دیں. کیف حالک یا شیخ؟ ہاں جی مہمان ہے ہمارے بھائی جان، ویلکم یار آپ لوگوں کو. یہ ان کا شجرہ طریقت ہے. الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں داتا گنج بخش کے مزار پہ. میری خواہش تھی کہ یہاں میں حاضری دوں. میرا کافی ٹائم کا سپنا تھا کہ میں یہاں آؤں ایک مرتبہ. یہ ماشاءاللہ دربار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اظہار نہیں کر سکتا کہ ابھی مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کر. میرا ایک سپنا تھا کہ یہاں میں آؤں. آپ دعا کریں. کیسے بھائی لوگ بنا رہے بھائی؟ جی جی آپ کا نام کیا ہے یوٹیوب نام کا؟ ارسلان سعید. یہ نا میں ایک بات بتاؤں، جی جی میں نا بھائی ویڈیو وغیرہ. ہاں میں ٹک ٹاک بناتا نا جمشید. اچھا ہاں جی یہ بھائی مجھے ملے ماشاءاللہ سے. چلو کوئی تو دوست ملا. پتہ ہے جی جی یہ میری آئی ڈی ہے، یہ تھوڑے نا ویڈیو وائرل کروا دو. بھائی یہ آئی ڈی ہے جس بھائی نے مجھے دعا کا کہا تھا. اللہ پاک اس کو خوش رکھے. یہ بہت اچھے ماشاء اللہ. آپ نا محنت کریں، صرف آپ نا محنت کریں، اللہ پاک آپ کیا دیں گے ماشاء اللہ. اللہ خوش رکھے. مجھے تو فور لینا یہاں پہ. جی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. آپ پر یوٹیوب جس بھائی کا میں نام نہیں لے سکا اس نے دعا کا کہا تھا. آپ کا شکریہ، آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. یہ مسجد ہے ماشاءاللہ سے، اور وہاں پر مزار ہے. یہ مسجد دیکھ رہے ہیں. اب حاضری کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو دکھا دیں گے پورے مناظر. اللہ پاک ہمارا یہاں نہ قبول فرمائے. اب جن بھائی نے دعا کے لیے کہا تھا، اب ان کا وسیلہ دے کر میں ان کے لیے دعا مانگوں گا. اب نام تو نہیں لے سکتا کیونکہ ان کو برا نہ لگ جائے. میرے گھر والوں نے کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. اللہ ان دوستوں کو سلامت رکھے ہمیشہ. اچھے دوست ہونا بھی ایک رحمت ہے بہت بڑی. تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب حضرت خواجہ غریب نواز، صحیح ہے، جن کو کہتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب مدینہ شریف انہوں نے حاضری دی، مدینہ شریف سے ان کو سلطان الہند کا لقب ملا. اچھا سلطان الہند کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ان کو باقاعدہ حکم ملا کہ آپ ہند چلے جائیں، ہند کی سرزمین آپ کا انتظار کر رہی ہے. وہ یہاں سے پیدل سفر کرتے ہوئے اپنے قافلے کے ساتھ جب لاہور کے قریب سے گزرے تو ان کو حکم ہوا کہ ہمارا نگران لاہور کی سرزمین پر بیٹھا ہے، گنج بخش حجویری، ان کے دربار پر حاضری دیں. جی وہ یہاں پر تشریف لائے، یہاں پہ انہوں نے حاضری دی. یہ ہے ان کا چلہ گاہ. کیا یہ چلہ گاہ ہے. چلا گا. یہاں بیٹھ کے انہیں چلہ کاٹا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ. جب وہ چلے سے نکلے، چلہ گاہ سے جب نکلے، وہ شعر پڑھتے ہوئے نکلے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسا پیر کامل کاملا رہنما. وہ آپ اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملا رہنما. یہ خواجہ غریب نواز کی زبان سے ادا ہوا شعر ہے. ان کے لیے ادا ہوا. جی بالکل. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں سے ہند کی سرزمین کا سفر کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو یہاں سے لاہور کی دربار سے ہوتے ہوئے، ان کے دربار سے ہوتے ہوئے گئے. یہاں انہوں نے چلہ کاٹا ہے. شور آ رہا. صحیح ہے، آپ سمجھ آ گئی آپ کو بات کو. تو وہ لکھا ہوا شعر ہے. یہ شعر ایسا ان کی زبان سے کیا ادا ہوا ہے کہ قیامت تک جو نا یہ لکھا گیا ہے. کون سا شعر؟ وہ رہا چلہ گاہ ہے. یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چلہ گاہ یا چلہ کاٹا کرتے تھے.
चिल्ला काटा नहीं करते, चिल्ला काट कर यहाँ से चिल्ला काटा, फिर वो निकले आगे सर में हिंद। ये पहले बुजुर्गों के ये भी खिलाफ थे, ये भी पहले वहां भी रह चुके हैं, लेकिन अब ऐसे दीवाने हुए कि हमें भी दीवाना बना दिया। अब पूछ बताओ तो सही तूने कौन दीवाना है? बनाया तो मैं दीवाना बना। हाँ। जो अहले हदीस थे इंशाल्लाह इस लाइन पर आगे आगे अपनी नस्ल को भी इस लाइन पर चला दिया। देखें, ये तो हमारे खानदान की जो है सारी नस्लें आ रही हैं वहाबियों की। लेकिन हमारे पास चेंज हो गई। हाँ। ये तो इन्होंने पहले नहीं था, मैं इधर पहले हाजिरी दी है ना, ये ऐसे बंद नहीं था, ये खुला था और चिल्ला का लिखा हुआ था यहाँ पे और बुजुर्ग की एक तस्वराती तस्वीर लगी हुई थी। अब इन्होंने बंद कर दिया सारा ये ना शीशे लगा कर। देखें भाई, ये वो शख्स है जो पहले बुजुर्गों के खिलाफ कहा करते थे, लेकिन अब ऐसा दीवाना बने कि ऐसा दीवाना बने। यहाँ से भी देखना, यहाँ से चिल्ला काट कर वो बुजुर्ग का दरबार था। वो है मेरे, तू उधर आगे जा, रूप है ना उस साइड। पीरो मुर्शिद को मानते ही नहीं थे, लेकिन इनकी जिंदगी में ऐसा शख्स है जिन्होंने इनकी जिंदगी बदल दी पूरी। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। जब उनको मदीना शरीफ से हुक्म मिला, अपने पीर मुर्शिद के साथ थे, सुल्तानुल हिंद का उनको लक़ब मिला और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से उन्होंने सलाम किया तो उनको अंदर से जवाब मिला, सुल्तानुल हिंद का खिताब मिला। और वहां से हुक्म हुआ कि आप हिंद चले जाएं, हिंद की सरजमीन को आपकी जरूरत है। अच्छा, जब वहां से उन्हें सफर तय करना शुरू हुए तो हिंद का सफर लाहौर से होता हुआ गुजरता था। जब लाहौर तशरीफ लाए तो यहाँ से उनको हुक्म मिला कि यहाँ लाहौर के सरजमीन पर हमारा एक बंदा, हमारे खादिम बैठा हुआ लाहौर के सरजमीन पर, आप उनके घर पे जाएं, हाजिरी दें, उसके बाद आगे तशरीफ ले जाएं। जब यहाँ तशरीफ लाए वो, सही है, बुजुर्गों का एक कमाल क्या होता है, जब एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग के दरबार पर जाता है ना तो उनको वहां से एक इशारा मिलता है कि हमने आपकी हाजिरी कबूल की, लेकिन इनको हाजिरी का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फिर वो परेशान हो गए कि आखिर हमें ऐसी क्या खामी, क्या कोताही हो गई कि जवाब नहीं मिल रहा। जवाब नहीं मिल रहा था। अच्छा, कि हमारी शायद हो सकता है हमसे ऐसी क्या कोताही, क्या हो गई कि हमें यहाँ से जवाब क्यों नहीं मिल रहा, कि हमें हुक्म मिला यहाँ के दरबार पर हाजिर दें, हम हाजिर हो गए, लेकिन यहाँ से हमें जवाब नहीं मिल रहा कि हमसे क्या कोताही हो गई। सही है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिल्ला काटा इस जगह बैठकर। उनकी आदत क्या थी, रोज सुबह फजर के बाद तलावत करते थे और इतनी खूबसूरत आवाज में तलावत करते थे, ख्वाजा गरीब नवाज साहब का यकीन करके दरो दीवार छूमने लग जाते थे। अच्छा, हाँ जी, इतनी खूबसूरत आवाज में तलावत करते थे। आखिर ऐसा हुआ कि 40वें दिन जब चिल्ला पूरा हो गया, वो इतने परेशान थे कि हमें इशारा क्यों नहीं मिल रहा हाजिरी का। सही है। और चिल्ला इतना वो आपदीदा हो गए, उनकी आंसू की लड़ी बहने लग गई, इतना ज़ारो क़तार रोने लग गए। तो अचानक दरबार से आवाज आई, ए मोइनुद्दीन क्यों रोते हो? सुभान अल्लाह। हाँ, कहाँ से आवाज आई? उन्होंने फरमाया, सुनो तो लो, उन्होंने फरमाया कि हजूर मेरे को इशारा नहीं मिल रहा था, हुक्म था यहाँ आने का, लेकिन मैं आ चुका हूँ, चिल्ला भी काट चुका, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ से इशारा नहीं मिल रहा कि आपने मेरी हाजिरी कबूल की। तो उन्होंने फरमाया, मोइनुद्दीन मुझे तुम्हारी तिलावत बहुत पसंद थी, आप जो सुबह उठकर डेली तिलावत करते थे, मैं बड़ी खुशी से और बड़े शौक से सुनता था। अगर मैं हाजिरी कबूल कर लेता तो तुम यहाँ से चले जाते। सुभान अल्लाह, समझिए, इसीलिए मैं कबूल नहीं कर रहा, मैंने आपकी हाजिरी कबूल की। जब उन्होंने हाजिरी कबूल का जब इशारा दिया, उनको जवाब दिया, तो उस टाइम एक कदम निकालते हुए चिल्ला गाह से बाहर निकले, गंज बख्शी फैज आलम मजहर नूर खुदा, ना किसा रा पीर कामिल कामला रा रानमा। ये शेर ऐसा उन्होंने अदा किया, क़यामत तक ये लिखा गया है। हर किताब में, हर जगह पे, हर मजार पे ये शेर लिखा जाता है और हर किताब में ये चीज पढ़ाई जाती है। उनके जबान से अदा हुआ ये शेर, ख्वाजा गरीब नवाज की जबान से अदा किया हुआ शेर आज तक लोगों की जबान पर मौजूद है, जो दरबार के ऊपर वो लिखा हुआ है। सुभान उसके अल्लाह। बाद वो हिंद की तरफ तशरीफ ले गए। अब देखे ना, मेरे से बड़े तो ये दीवाने हैं। मैं तो अभी जब से पैदा हुआ मुझे तो यही रास्ता दिया गया, लेकिन इन्होंने तो अभी रास्ता अपनाया, लेकिन ज्यादा नॉलेज तो इनके पास है। अब तो कहना पड़ेगा उस्ताद ही है। चलें फिर, आपको बाद में मिलेंगे। कैफ हालुका या शेख? हाँ जी, या शेख कैफ हालुका? नहीं आता यार, अरबी नहीं हूँ मैं। अंता आखी 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 कहते हैं भाई को। अच्छा, सही। ये मुझे अरबी समझ रहे थे, मैं आलिम कोर्स कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी अरबी आती है। और हम आए कहाँ से ये भी बता दो।
हम आए कराची से। अच्छा जी, क्या बात है, आप तो मेहमान है हमारे भाईजान। वेलकम यार आप लोगों को। हमारे भाईजान कैसे हो और क्या खिदमत करें, आप इतनी बड़ी हस्ती में आए माशाल्लाह, हमारे मेहमान है भाई। नहीं सर, आप बस बुजुर्ग के दरबार पर आ गए, हाँ, इनकी दुआएं लेंगे बस, से बढ़कर सही क्या हो बात सकता है, है, इससे बड़ी सही कोई है, बात सही नहीं। हमें ये मोहब्बत से इनसे आ हाँ गए। माशाल्लाह। वो भाई अरबी था, मैंने कहा यार भाई चाहे इसलिए मैं कह रहा था माशाल्लाह। कराची से कौन सी जगह से आप? मंजूर का मंजूर कॉलोनी। मंजूर कॉलोनी। कराची में मेरे मामू रहते हैं, गोली मार 2 नंबर। अच्छा अच्छा तो मैंने इनसे भी अरबी में बात करी, जो सीखा था मैंने। तो मेरे जी 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 मैं कहा भाई मेरे नाल पंजाबी की गल कर, होना सी पंजाबी है। आखिरी का मतलब होता है भाई, मैंने कहा। अगला हमारा सफर, जो हमारी जो नीयत है, हमारा जो इरादा है, अल्लाह पाक उस इरादों को कामयाब करे, अल्लाह पाक हमारे मकसद को पूरा करे। अगला हमने पड़ाव करना है अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद बाबा फरीद। मैं तो बचपन से नारा सुनता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन कभी गया नहीं हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक वहाँ भी दरबार पर भी हमारी है कहाँ वो? पाक पतन शरीफ में। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ठीक है। दुआओं में याद रखना हमें, ठीक है। अल्लाह पाक आपको खैर से अपने मंजिल तक पहुँचाए, ठीक है। हमारी दुआ है, आपसे मिलकर खुशी हुई हमें, बहुत ज्यादा। दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह। हमारी गलती गुस्ताखी माजरत। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऐसे लोगों की तो कदर करनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र कि हमें ऐसे लोग ही मिले। अच्छा, एक बच्चा वहां बैठा हुआ था ना, मुझे कहता है भाई ये दरवाजा खोलो। मैं अरबी शुरू हो गया, हल आनता कई फहाल होगा। वो अम्मी के पास भाग गया, अम्मी अम्मी अरबी आ गया, अरबी आ गया। उसकी अम्मी पता नहीं सराइकी में क्या कह रही थी।